Good morning, students. Welcome to your EVS class. We are studying the chapter 1, Some Organ System, in which I have explained you about the organ system. I have told that there are two types of organ, external organ and internal organs, and I have given some examples of organ system also. And we are reading the digestive system, in which I have explained that what is the digestive system and which organs participates in for the formation of the digestive system. Today we will continue the digestive system, the mouth. You know that the digestion starts in the mouth, and it is very important part of our body because it contains teeth. Do you know how many teeth are there? In an adult, there are 32 teeth. That means in upper jaw, 16 teeth, and in lower jaw, there are 16 teeth in each jaw. Okay, but in children, the total number of teeth are present 20. That means 10 in upper jaw and 10 in lower jaw. But in adult, how many teeth are there? There are 32 teeth. That means 16 teeth in lower jaw and 16 teeth in the upper jaw. Okay, there are four types of teeth in our mouth. Four types of teeth, and their shape are different and their functions are different. What are the name of these teeth? These are canine, premolars, molars, and front teeth. These are incisors. Look here, the shape and size of each teeth are different, है ना? These four teeth are present in our mouth, which helps in biting. When you bite the apple, which type of teeth you use? You use incisors, है ना? Because its edges, this is the edges of a teeth, and it is very sharp, and it you can bite from it, है ना? जब आपको कोई भी चीज काटना होता है, which type of teeth you use the incisors, है ना? आप incisors teeth को यूज करते हैं. How many number of teeth are there? These are in four in lower jaw and four in upper jaw. Got it? Four in upper jaw and four in lower jaw. Good. Look here. आप इसके बगल वाली teeth को देखिए. This teeth and this teeth. In a similar way, this teeth and this teeth. You can use the mirror to see the different types of teeth in the mirror. आप मिरर में आप देख सकते हैं. फोर टीथ के बगल में आपको जो टीथ दिखता है, दे आर कॉल्ड केनाइन, है ना? ये नुकीला होता है. जनरली जो कार्निवोरस होते हैं ना, कार्निवोरस जो होते हैं, उनका जो टीथ होता है वो ज़्यादा डेवलप होता है. देखिएगा आप डॉग का देखिए, डॉग का ये वाला टीथ जो होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा डेवलप रहता है ना, निकला हुआ रहेगा ज़्यादा. क्यों? क्योंकि वो मांस को फाड़ने के लिए या जो फ्लैश या किसी एनिमल्स को फाड़ने के लिए वो जो उस टीथ को यूज़ करता है. ठीक है. डैट मीन्स व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस टीथ? ये जो होता है काफ़ी पॉइंटेड होता है ना, काफ़ी ज़्यादा पॉइंटेड होता है, तो इसका यूज़ जो होता है वो किसी चीज़ को वो फाड़ने के यूज़ में लाता है ना. इसके ठीक पीछे में कौन से टीथ होते हैं? लुक हियर, दिस टीथ, दिस हियर, दिस, एंड इन सिमिलर वे अपर जॉ में भी होता है ना. तो ये इसके नंबर जो टीथ है ये देखिए, टोटल नंबर ऑफ 5 यहाँ पे, ये 5 यहाँ, और इन अ सिमिलर वे 5 ऊपर और 5 इस तरफ भी होते हैं, है ना. तो ये टीथ जो होता है ये यूज़ में आता है किसी भी चीज़ को चेविंग करने में या ग्राइंडिंग करने में. चेविंग का मतलब क्या होता है? चबाना,
है ना। ग्राइंडिंग का मतलब होता है क्या, पीसना, चबाने या पीसने के काम में आता है। तो इसमें जो फर्स्ट जो पार्ट होता है, रुकिए मैं इसमें से ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कलरिंग हो गया, मैं इसे हटा के फिर से आपको दिखाता हूँ। लुक हियर, ये दो टीथ जो आप देख रहे हैं, दे आर कॉल्ड प्रीमोलर्स। ये इस तरफ भी टू टीथ होते हैं और ये टू टीथ यहाँ पर भी प्रीमोलर्स के होते हैं। इनमें सिमिलर जॉ, ये यहाँ पर भी ऊपर के जॉ में और इस तरफ भी ऊपर के जॉ में टू प्रीमोलर्स होते हैं, यानी कि 2 + 2 + 2 + 2, टोटल नंबर ऑफ प्रीमोलर्स आर 8। ठीक है। इसके बाद ये उसके ठीक पीछे वाले जो टीथ होते हैं, दे आर कॉल्ड द मोलर्स। ये भी फ्लैट होते हैं, है ना, ये भी फ्लैट होते हैं। ये यहाँ पर 3, हियर इज 3 इन अपर जॉ, 3 एंड इन दिस एरिया 3, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ मोलर्स आर 12। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस टीथ? दिस टीथ आर यूज टू चेविंग एंड ग्राइंडिंग, है ना, पीसने के काम में आता है। ये बात क्लियर हो रहा है? ओके, what you have to do in homework, you have to write the different types of teeth and its uses. That means you have to write the uses of incisors and its number of teeth, यानी कितने नंबर ऑफ incisors होते हैं, कितने नंबर्स canines के होते हैं, कितने नंबर्स प्रीमोलर्स के हैं एंड कितने मोलर्स है ना, टोटल हमारे माउथ में। डैट मीन्स इन एडल्ट, नॉट इन ए चाइल्ड। हम लोग जो भी बात कर रहे हैं अभी यहाँ पर, वो एडल्ट की बात कर रहे हैं, नॉट ए चाइल्ड, क्योंकि चाइल्ड में जो होते हैं वो फ्यूअर टीथ होते हैं, सारे टीथ उसमें एक एज के बाद आते हैं ना। तो आपको जो भी कुछ अभी बताया गया, दे आर ऑल अबाउट द एडल्ट टीथ, है ना, एडल्ट पर्सन में जो टीथ होते हैं उसके विषय में मैंने आपको बताया। ठीक है। ओके, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट पार्ट विच इज द स्टमक। Look here, this is the portion of the stomach, है ना, ये स्टमक का पोर्शन है। What is its shape? Its shape is just like a J, है ना, J का शेप होता है, इसका शेप जो होता है वो J की तरह होता है। ठीक है। ये जब हम कोई भी चीज़ खाते हैं माउथ के थ्रू, फूड पाइप से, सॉरी, ये हमारे फूड पाइप से ये स्टमक के अंदर आता है ना। फूड पाइप का क्या काम है? फूड पाइप जो है वो हमारे माउथ को और हमारे स्टमक को वो कनेक्ट करता है ना। तो जो भी हम खाते हैं वो हमारे माउथ से होकर के जाता है, सॉरी, फूड पाइप में जाता है, और फूड पाइप में जाने के बाद जो है वो स्टमक के अंदर चला जाता है। ठीक है। इस स्टमक में ये कितने देर रहते हैं? इट रिमेन्स हियर 4 to 5 आवर्स, है ना। ये 4 से 5 घंटे का समय यहाँ पे लगता है खाना को पचाने में। तो इसका काम क्या है? व्हाट इट्स यूज? इट जनरली रिलैक्सिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग, है ना। ये रिलैक्स का मतलब होता है फैलना, एंड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सिकुड़ना, है ना। ये जब लगातार फैलता और सिकुड़ता रहता है तो जो माउथ से आए हुए जो फूड होते हैं ये और भी ज़्यादा बारीक में पीस जाते हैं। यहाँ पर भी कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम आकर के मिलते हैं और इसको वो थिक सूपी लिक्विड में इसको कन्वर्ट कर देते हैं ना, थिक लिक्विड लिक्विड में इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। और डाइजेशन का बहुत सा इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो यहाँ पर होता है। आ रही बात समझ में? ओके, अपने इस डायग्राम को पहले से ही बना करके रखा है। गुड। तो होमवर्क में आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि आपको क्या करना है। ऐसे मैं आपको व्हाट्सएप पे भी आपको भेज दे रहा हूँ। ठीक है। ओके, थैंक यू।